A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 7, we have covered another 5 principles of FUEL for principles of management. Now, in this lecture, that is lecture number 7, we are going to start with another 4 principles of FUEL, that is principles of management of FUEL and scientific principles by F.W. Taylor. So the content for this is remaining 4 principles of FUEL and scientific principles by F.W. Taylor. The 11th principle says equity. Equity का क्या मतलब है बेटा? हेनरी फ्यूएल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को काइंडली और इक्वली ट्रीट करना चाहिए. एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली, ठीक है, सो दैट एम्प्लॉय की जो सही जगह है ऑर्गेनाइजेशन में वो उनको देनी चाहिए. मैनेजर्स को सुपरवाइज और मॉनिटर करना चाहिए प्रोसेस को, एंड दे शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ फेयरली एंड इम्पार्शियली. मैनेजर शुड नॉट डू पार्शियलिटी विद एनी ऑफ द एम्प्लॉय, because all the employees in the organization are having some or other designation and reputation, so everyone should be treated equally. Next principle is principle of stability of tenure of personnel. What this principle says? This principle says that deployment and managing of personnel, and this should be in balance with the service that is provided from the organization. Management को कोशिश करनी चाहिए to minimize employee turnover and to have the right staff in the right place. Management should always try कि जो भी turnover है employee का उसको वो minimize करे और सही staff को सही place पर appoint करे. Focus areas such as frequent change of position and sufficient development must be managed well. जो भी sufficient areas हैं development के changes के उनको कीनली ऑब्ज़र्व करना चाहिए. तो जो टेन्योर है पर्सनल का, मीन्स जो एक पर्सनल किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो लाइफ स्पैन है फर्म में वो एक फिक्स रहना चाहिए ताकि टर्नओवर भी एम्प्लॉयज़ का मिनिमाइज हो सके और राइट स्टाफ को राइट प्लेस पर अपॉइंट कर सके. 13th प्रिंसिपल इज़ इनिशिएटिव. हेनरी फ्यूएल ने एक बार फिर से आर्ग्यूमेंट किया दैट there should be some initiative or everyone should have their own new ideas to express their feelings towards the working of the organization. This encourage interest and involvement and create added value for the company. अगर आप initiatives लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपनी के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं. Employee initiatives are a source of strength for the organization. Employees का जो इनिशिएटिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है. देखिए बेटा, कोई भी एक एम्प्लॉय, कोई भी एक मैनेजर पूरी फर्म के लिए फर्मली नहीं सोच सकता है. सो दिस इज़ द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कि वो इनिशिएटिव ले अपनी फर्म के लिए to excel in his or her field. This encourages the employees to be involved and interested. इससे employees involved भी रहते हैं और interested भी रहते हैं. Next principle is spirit the corps. What does this principle spirit the corps means? This principle says that involvement and unity of the employees must be there. Employees का involvement रहना चाहिए और unity भी रहनी चाहिए. Managers are responsible for the development of morale in the workplace individually and in the area of communication. Basically, spirit the corps का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी होनी चाहिए. अगर मैं एक वर्ड में बताऊं spirit the corps तो I must be removed by we. I must be eliminated by we. I मतलब मैं को हम रिमूव करें किस वर्ड से? WEV से, कि हम सब हैं तो ही ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता. और जब तक ये फील किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती है तब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं सोच सकते.
And once this feel is there, once spirit the corps contribute to the development of culture, and then it creates an atmosphere of mutual trust and understandings. So these four were the remaining principles of Fayol's. Now we'll start with the principles of Taylor. These are scientific management. What is scientific management? पहले जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट दैट एग्जामिन्स एंड इंटीग्रेट्स वर्कफ्लोस. साइंटिफिक मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है जो एग्जामिन करता है और वर्क फ्लो को इंटीग्रेट करता है. इसका प्रिंसिपल गोल होता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. मेन टास्क इसका क्या होता है? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, स्पेशली लेबर पोटेंशियल, लेबर्स के लिए बेसिकली. इट वॉज वन ऑफ द इनिशियल एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट साइंस टू द डिज़ाइन ऑफ मैथड्स इनटू मैनेजमेंट. ये एक आपका पहला इनिशिएटिव है जिसकी हेल्प से साइंस को हमने ऑप्ट किया मैनेजमेंट और मैथड्स की डिज़ाइनिंग के लिए, इसलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है. नाउ लेट्स, और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये F.W. टेलर ने दिए थे. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज प्रिंसिपल्स. नंबर 1, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दैट इट इज़ द डिस्क्रिप्शन, मतलब जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब जो इंट्रोड्यूस किया F.W. टेलर ने, तो इनका मेन फोकस क्या था कि वी हैव ऑलरेडी पॉइंटेड टू द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रूल ऑफ थंब स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजमेंट. हम जो रूल ऑफ थंब स्ट्रेटजी है मैनेजमेंट की, हम उसको पहले से ही उसकी शॉर्टकमिंग्स को आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं. सेवरल मैनेजर्स वुड सपोर्ट देयर ओरिजिनल रूल्स ऑफ थंब. इट इज़ बट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लियर दैट ऑल वुड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉम्पिटेंट. हर बंदा उतना कॉम्पिटेंट हो इसलिए वो ज़रूरी नहीं. इसके लिए हमें ये प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना पड़ा. नेक्स्ट प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड. बेसिकली फैक्ट्री सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्ट दैट मैनेजर्स वर्क्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द ओनर्स एंड द एम्प्लॉयज़. मतलब क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो एक कनेक्शन पिन की तरह, एक लिंकिंग पिन की तरह वर्क करते हैं ओनर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में. मैनेजर्स को ही देखना है कि उनको किस तरीके से काम लेना है एम्प्लॉयज़ से. उनको इतना टफ भी नहीं होना है और उनको इतना सोफिस्टिकेटेड भी नहीं होना है कि वर्क प्रॉपरली ना लिया जा सके. सो देयर शुड ऑलवेज अ हार्मनी अमंग्स द एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इसका मतलब क्या है? दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन ओनली बी अचीव with the collaboration of different employees. कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. होता है ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने ये काम किया, मैं ये कर सकता हूँ. नो, दिस शुड नॉट बी देयर. द एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट रादर देन इंडिविजुअलिज्म. एग्जैक्टली, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को एक होकर काम करना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअलिज्म. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ development of workers to their greatest efficiency and prosperity. We all know one thing very well, that a large degree, that industrial productivity relies to a large degree on personal capability. जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी है वो इंसान की पर्सनल कैपेबिलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती है, और ज़्यादा डिपेंड करने के चक्कर में देयर शुड बी द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट. उनकी एफिशिएंसी का डेवलपमेंट होना चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट. एम्प्लॉय ट्रेनिंग को नेसेसरी करना चाहिए सो दैट द बेस्ट मेथड इन्हेंस एज अ रिजल्ट, ताकि हमको बेस्ट मेथड मिल सके. टेलर was of the opinion that matter for competence should be raised in right from the methods of employees choice. और टेलर की यही सोच थी कि जो कॉम्पिटेंट है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, एंड एज फार एज कंसर्न डेवलपमेंट ऑफ एवरी वर्कर शुड बी देयर. जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, जिसकी जितनी प्रॉस्पेरिटी तक हम उसको लेकर जा सकते हैं, हम जिसको जितनी उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग
जितना ज़्यादा हम उसका प्रॉस्पेरिटी लेवल बढ़ा सकते हैं, वी शुड डू वर्क इन दिस एस्पेक्ट. So these four were the scientific principles given by F.W. Taylor. Number 1, science not rule of thumb. Number 2, cooperation not individualism. And next is harmony not discorded. And then development of workers to their greatest efficiency and prosperity. That's all from this lecture. Thank you.